Hello guys. Hello everyone. Am I audible? Just a second, I'm waiting for 2-3 minutes so the remaining participants can join. Some people are still joining. Just wait for 2-3 minutes. Okay? Hello guys, first of all, I'll introduce myself. I'm Sharda Chaudhary. I'm going to take your batch, and as you know, I have already like some of my older students are also there. So I'm taking the online trainings for the Go Ahead You Have Technologies. I have completed my masters in the AI, machine learning, and deep learning, and I also worked with the different companies, so you will get the benefit of this like as industrial experience also. You will get the benefit of that also. And you know, all of you are registered for the AI, ML, and deep learning course. So welcome to all of you. Okay, you are not able to see my screen. Okay, I'll just checking it. Are you able to see this now? My screen is visible. Guys, just respond. You have there is a question window, like questions written over your system, so you can click over that and you can give the confirmation. Okay, I got confirmation from lots of the people like Kashish Gupta, Harshita, Sheena, Bhupendra, Kashish, Kush, Daniel. And what about the remaining? Khushbu. And Priyanka Kumawat and Khushbu Prasad, and one is Khushbu Bishwas, and there is one is the Neha and Praveen. Okay. Okay, guys, thank you so much. And one more thing I want from you, just introduce yourself, give write your name, college name,
and the year in which you are studying. Okay, I'm waiting for your responses. First of all, we should know each other. I'll read it loudly so other people can know you. Just write it. I can read the Harshita Mahavar College's Government Women's Engineering College, Kush Gupta from BKBIT College, second year, and Tanuja Pawar from EC Branch Government Women's College, Bhupender Joshi from GIT College, and Kashish Gupta from GIT College, third year, and Khushbu Prasad from Khushbu Prasad from which college? GWEC, Government Women's College Engineering, Ajmer, third year. And Manisha from Maharani Girls Engineering College, Jaipur. And Priyanka Kumawat from Government Women's Engineering College, Ajmer. And Neha Gupta from JCRC University. And Praveen from also JCRC University. Okay, someone writing, Esther? Pankaj from JNIT College, Jaipur. And who's this? What's your name? He's from Triple IT Kota. Ankit from Triple IT Kota. Okay. He's in second year. Okay, guys. So this is all about your introductions. So now I'll just tell you about the course content, what we will be going to cover within the 45 days. And as you know, this is the 45 days training, and we will do the more over things in the Python, AI, ML, and deep learning, right? And you know, nowadays we have lots of time. You guys have lots of time. You can practice different things. So I'll give you lots of assignments. You need to complete that by yourself, and we can discuss the answers in the next class. Okay. So now come to the course content. First, we will go through the course content. What is the actually course content? You can see that. Okay. First, confirm me, all of you are comfortable with this? सब लोगों को अच्छे से सुन रहा है, screen दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है ना? If you are facing any problem, you can just give me in the question window so that we will solve it. Otherwise, मैं आगे की चीजें start करती हूँ. Just give me a quick confirmation. Yes. Just write yes in the chat window, in the question window, ताकि मुझे पता चल जाए. Daniel is written yes. Kush, yes. Neha, yes. Priyanka Kumawat, yes. He's a Kush, not Kush. Okay. And Manisha, yes. Kushbu, Harshita, Kashish Gupta, Praveen, Pankaj, Ankit. Okay. Thank you so much. And what about the remaining? Seena, are you able to listen me? Am I audible? And Nishant Bhatt, Mohit Bansal, Mohammad Vyas,
You people not even written anything. Aisha, Ishika. You are not Tanuja. Your name is Ishika. Okay. 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 So first of all, we will see Ishika. Yes, Ishika. Tell me, what do you want? I'm Tanuja Pangar. I'm not getting. What's your name? Ishika or Tanuja? You have written Ishika. Hello. Am I audible? Okay, guys. I'm just starting now. First, I'll tell you about the course content. It is very first day of our course content, our course for this course. Okay. So here you can see what we need to cover. We need to cover first thing is the Python. In this module, you will get a complete knowledge of the Python, the core Python part that we needed for the machine learning and deep learning. We will do each and every topic. We will cover them. After that, we will go to the data science libraries. We will cover them. Data science libraries are like NumPy, SkyPy, Pandas, sklearn, Matplotlib, Seaborn. We will cover these libraries. Then come to the machine learning. In the machine learning, initially we will see some maths behind it, and then we will do some algorithm like regression, classification, clustering. All these things we will do, and then we will come to the main topic is our deep learning. What is actually deep learning? In this, we will start the deep learning, how deep learning is affecting our life, how it is affected to day life, we will do, and how deep learning is different from the machine learning, artificial intelligence. Okay. And then the fourth module is understanding of neural networks. My voice is breaking. Okay, just a second. I'll plug out my uh, mic again. Okay, guys, now it's perfect. Bhupendra. Bhupendra, can you confirm me? Or either it is problem at your side. Still it is breaking. Guys, others can confirm it is breaking at Bhupender side और बाकी सबको भी दिक्कत है. It's a clear. Mohammed Vyas is written and Mohit Bansal is also clear. Kashish, no problem. Okay. Bhupender, just check at your side. Okay. अगर आप लोगों को कुछ लग रहा है तो आप अपने ईयरफोन को एक बार निकालेंगे एंड दोबारा लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आई थिंक. ओके. सो आई वाज टेलिंग डीप लर्निंग. व्हाट इज द डीप लर्निंग? डीप लर्निंग में हम लोग देखेंगे डीप लर्निंग क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है और बेसिकली इनमें क्या डिफरेंस है. After that, the main topic is neural network, and neural network is very important, guys. We will implement the neural network with the help of TensorFlow, and then we will go into the deep dive into the neural network. न्यूरल नेटवर्क में हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, क्या प्रोपोगेशन होता है, बैक प्रोपोगेशन, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, हाउ टू विजुअलाइज द टेंसरफ्लो, ऑल दीज थिंग्स वी विल डू इट. Okay.
And then the master deep neural network. In this, we will practice over the different data sets in the deep learning, feature extraction, gradient descent, all these things we will see in this. And then we will start the convolutional neural network. It is a part of neural network. Basically, neural network have a system just like the our neural system, and there are the different type of neural network to process different type of data. Mainly for images and videos, we have convolutional neural network. Okay, and one is for the word processing, we have recurrent neural network, and there is the restricted Boltzmann machines, autoencoders, decoders. These are also part of the AI. We will see the different applications of them. And there are some frameworks that is available to implement the deep learning. One is the Keras, another one is TF-Learn. We will go through each and every. And the most important thing is computer vision. In the computer vision, we will do the image processing part. We will walk over the image, we will walk over the videos, and we will do the different projects like the real-time face recognition and real-time object detection and recognition. And you can you can detect the gestures, you can track the objects, you can track the actions. These things we will do in the computer vision with the help of OpenCV library. Okay. And at the end, we will complete a project at least. All of you need to complete a single project. Like I'll give you some idea about the projects. You need to do that with me. And if you feel any difficulty, you can ask me. Meanwhile, we will start like हम इसका flow थोड़ा सा change करेंगे according to our training modules. हम लोग इसको बीच में ही project start कर देंगे. उसके बाद आप लोग उसके बाद हम कुछ remaining topics करेंगे ताकि आपका project 45 days के अंदर हो जाए. Okay? So this is all about how we will be going through the course. These are the modules we need to cover, and daily I'll keep it to our class. Okay. And after that, I'll provide some questions. You need to solve that. You need to submit that. And then only in the next class, we will discuss each and everything. If you have any question, you can ask in between the class and after the class. Okay. So first of all, guys, today what we will do the first thing, we'll start our basic module because some guys are from the electronics background also. So we will start from very scratch. And like first thing we need for this deep learning course is the Python. So first you need to know what is the Python and how we will be going to work with the Python. Okay, so first of all, you need to install something. You need to install any ID like at your system, and then you will start the practice. So guys, I'll recommend you, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग Anaconda at least सबसे पहले आप लोग Anaconda डाउनलोड करेंगे. Okay. Daniel, just wait. I'll tell you that thing also. अभी आपको मैं कुछ प्रोसेस बता रही हूँ, पहले वो स्टेप्स फॉलो करने. दिस इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द कोर्स यू हैव अटेंडेड प्रीवियसली. ओके. So guys, what you need to do, first of all, you need to install the Anaconda in your system because it is very easy, and I want a uniform platform for all of you so that you can practice over that. Can you guys just tell me who have any ID installed in their system like PyCharm or Jupyter Notebook? आप लोगों में से किसी ने थोड़ा बहुत पाइथन पे वर्क किया और इधर यू नेवर टच्ड इट? अगर आपने कभी भी टच नहीं किया है, then only you can start it from today. Daniel is written, ma'am, I have Anaconda. Guys, please write जिनके पास कुछ installed है और जिनके पास कुछ भी installed नहीं है, they can write I don't have anything so that I'll recommend them. Bhupender is written, he have Jupyter. Kush is written, yes, he have. And Mohit is written, Mohit have the PyCharm. Mohit, you can use the PyCharm, और इधर if लाइक आप पाईचार्म पहले से यूज कर रहे हैं तो आप अब एक नया ट्राई दे सकते हैं जुपिटर नोटबुक पे, तो आप एक और एडिटर पे काम करना सीख जाएंगे.
and I just focusing for the Jupyter notebook because Jupyter notebook थोड़ा easy रहता है और उसमें आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो. Okay, and Sina is written, I have Visual Studio code installed already. देखो कोई इशू नहीं है, आप अलग अलग एडिटर पे भी कर सकते हैं, बट अगर आपने किसी और एडिटर पे पहले काम किया तो आप एक नया एडिटर सीख लेंगे. इट्स योर चॉइस, बट आप एटलीस्ट एक एडिटर आपके पास तीनों में से होना चाहिए, चाहे पाईचार्म हो, चाहे विजुअल स्टूडियो हो, चाहे जुपिटर नोटबुक हो. I prefer you can install the Jupyter notebook. Priyanka is written, she don't have anything. Mohammed Vyas is having Jupyter. So guys, those who don't have anything, just go to the Google and download the Anaconda. I'll give you the link how to install the Anaconda of my YouTube video. Go to the YouTube because after the class ये आपको करना है सबसे पहले. Go ahead, you have. आप यूट्यूब पे जाएंगे, गो एड्यूहब टेक्नोलॉजीज डालेंगे, वहां पे आपको प्लेलिस्ट में एक कोर्स मिल जाएगा मशीन लर्निंग, उसमें आपका पहला वीडियो मिलेगा आपको पाइथन इंस्टॉलेशन. इधर आई कैन शेयर द लिंक विथ यू. ओके, मैं अभी क्वेश्चन विंडो में भेज रही हूँ, आप उसको कॉपी करके सेव कर सकते हैं, तो आप वहां से देख लेना और आप लोग खुद से कर सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं. ये तो सिंपल है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें. ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप पाइथन नॉर्मल इंस्टॉल कर सकते हो, या गूगल कॉलैब भी आप यूज कर सकते हो, बट आप लोगों को अच्छे से खुद का प्रोजेक्ट करना है तो क्या होगा, आपके पास बहुत सारा डेटा होगा. जब आप ज्यादा डेटा पे प्रैक्टिस करेंगे तो गूगल कॉलैब में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपके. सो बेटर है आप इसमें आगे एनाकोंडा डाउनलोड का स्टेप्स दिए हुए हैं, तो आप एनाकोंडा डाउनलोड कर लें. ये थोड़ा सा आगे, हाँ, एनाकोंडा डाउनलोड करना आप, और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना. ठीक है, और जिनके है दैट इज वेल एंड गुड, देयर इज नो इश्यू. आप लोग उस पर जुपिटर नोटबुक ओपन करके साथ में प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं. सो आई Tanuja, don't have Tanuja, you after the class download it. Harshita, please download it. And Suruchi, you also download it. Okay, and Priyanka Komawat, you also need to download. और रिमेनिंग पर्सन, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, किसी के पास कोई एडिटर है तो ये आपकी चॉइस है कि आप ये करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना जो भी एडिटर यूज कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं. ओके, फर्स्ट इज दिस इज द रिक्वायरमेंट, बेसिक रिक्वायरमेंट आपके पास ये होना चाहिए. ओके, एंड आपको कोई डिफिकल्टी उसमें आती है तो आप इस वीडियो के यूट्यूब वाले वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसमें आपको प्रोसेस में नीचे कमेंट हम कर देंगे. ओके, आप सब लोग, आप जैसे ही आपने इंस्टॉल कर लेते हो, लाइक मैंने इंस्टॉल कर रखा है, इंस्टॉल करने के बाद आप अपने सर्च में जाएंगे, एनाकोंडा नेविगेटर आएगा, नेविगेटर पे आप क्लिक करेंगे तो वो लॉन्च हो जाएगा. लॉन्च होने के बाद वो ऐसा कुछ दिखेगा. ओके, फिर आपके यहाँ पे जुपिटर फर्स्ट टाइम आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉन्च का बटन आ जाएगा. यहाँ पे मैं लॉन्च कर रही हूँ जुपिटर नोटबुक. ओके, ये मेरे किसी भी ब्राउजर में ओपन होएगा. ठीक है, ये मेरे जैसे गूगल क्रोम में ओपन हो गया, जो भी आपका डिफॉल्ट ब्राउजर है उसमें ओपन हो जाएगा. ये जुपिटर नोटबुक है, बेसिकली ये जुपिटर नोटबुक का होम पेज है. इसमें सारे जो मैंने फाइल्स बना रखे हैं वो सब दिखेंगे. बाय डिफॉल्ट मेरी जुपिटर नोटबुक की फाइल्स कहाँ स्टोर होती हैं सिस्टम में, आप लोग ये देख सकते हो. लाइक सी ड्राइव में यूजर्स एक फोल्डर होता है, यूजर्स में आपके सिस्टम का जो नाम है, लाइक मेरे सिस्टम का नाम है शारदा, इस पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पे जो भी मेरी जुपिटर की फाइल बाय डिफॉल्ट बनती है वो यहाँ बनती है. अदरवाइज मैं कोई जो पाथ पे मैं खुद सेव करना चाहती हूँ फाइल, मैं वहां पे भी कर सकती हूँ. दिस इज द सिंपली बाय डिफॉल्ट मेरी फाइल्स कहाँ जाती हैं, सी यूजर्स, एंड जो भी आपके सिस्टम का नाम है उसके ऊपर क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आपको IPYNB फाइल्स मिल जाएंगे. IPYNB फाइल्स क्या होती हैं, आई पाइथन नोटबुक फाइल. ओके,
And why I'm telling you about the anaconda, I just want to tell you क्यों मैं आपको एनाकोंडा ज़्यादा सजेस्ट कर रही हूँ। बिकॉज़ एनाकोंडा में हमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। क्या होता है देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, होम पे आपको ये सारे आइकन दिखेंगे, यहाँ पे आपको कई सारे एडिटर लाइक स्पाइडर भी मिलेगा, जुपिटर भी मिलेगा, ये आपका विजुअल स्टूडियो भी मिलेगा आपको, ठीक है? आर स्टूडियो भी आप यहीं से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे एडिटर आपको एट ए ग्लांस ये इंस्टॉल करके दे देगा। उसके बाद दूसरा बेनिफिट क्या होता है एनाकोंडा नेविगेटर का, एनवायरनमेंट्स। यू कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स इन एनाकोंडा। बेसिकली व्हाट इज द एनवायरनमेंट, क्या होता है एनवायरनमेंट? इन द एनवायरनमेंट वी आर क्रिएटिंग लाइक डिफरेंट, आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन ऑफ पाइथन आप इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मेरा एक ओपन सीवी एनवायरनमेंट है, इसमें पाइथन 3.2 है। मेरा माई जैंगो एनवायरनमेंट है जिसमें पाइथन 2.6 है। सो मैं एक सिंगल सिस्टम पे मल्टीपल वर्जन्स ऑफ पाइथन इंस्टॉल कर सकती हूँ। आई कैन क्रिएट डिफरेंट एनवायरनमेंट, और ये एक तरह से वर्चुअल एनवायरनमेंट्स होते हैं। इस एनवायरनमेंट में एक तरह से आप क्या कर रहे हो, एक सिंगल मशीन पे अलग अलग एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, एंड क्रिएट करके वहाँ अलग अलग वर्जन ऑफ पाइथन इंस्टॉल कर रहे हो। बिकॉज क्या होता है, कुछ केसेस में हमारे कुछ पैकेजेस हैं वो एक पर्टिकुलर पाइथन के वर्जन को सपोर्ट करते हैं। सो हम लोग उसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हियर यू कैन सी एक प्लस क्रिएट का बटन है, आप यहाँ से न्यू एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं, एनवायरनमेंट का आप नाम दे सकते हैं, एंड पाइथन आप चूज कर सकते हैं। ओके Mohammed Vyas is asking these lecture will be uploaded to YouTube or not? No Mohammed, these lectures not uploaded to YouTube. YouTube पे नहीं मिलेंगे आपको। Actually हम लोग आपको एक लिंक दे देंगे, एक हमारे अलग से प्लेटफॉर्म है, उस पे आपको ये लिंक मिलेगा। वो केवल और केवल आप अपनी ईमेल आईडी से उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। Okay, you guys will get the access. We will provide the link of the particular videos. Okay, no limitation. Okay, so basically Anaconda Navigator is providing you a platform in which you can install the multiple versions of the Python at a time. Okay, और इधर तुम्हें जो भी कोई आपने कोई एक्स्ट्रा एनवायरनमेंट बना लिया, आप डिलीट करना चाहते हैं, यू कैन डिलीट इट। क्लिक कीजिए आप उस पर और आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ओके और आपको जैसे आपने बेसिकली एक बार एनाकोंडा नेविगेटर इंस्टॉल किया होगा, सो बाय डिफॉल्ट आपके यहाँ पे बेस आ रहा होगा, बेस या रूट कुछ लिखा हुआ। सो सिंपल आपके पास एक ही एनवायरनमेंट है, बट मैंने बहुत सारे एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर रखे हैं। सो ये मेरे मल्टीपल एनवायरनमेंट्स मुझे यहाँ दिखा रहा है। आप अपने खुद ट्राई कर सकते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट क्रिएट करके। बाकी हम लोग जब आगे पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। But this is the beauty of the Anaconda. We can install different versions of the Python. Okay, and here is the learning and the community. The official sites it provides you like ये pandas का documentation है, numpy का basically आपको कुछ standard links easily available करा देता है। Okay, so this is all about the Anaconda, and that's why I preferred it. And the second thing is लाइक आपको एनाकोंडा एक्सेस कैसे करना है। देखो एनाकोंडा को बहुत वे में आप यूज कर सकते हो, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। पहले आप जब अपने सर्च विंडो पे आफ्टर द इंस्टॉलेशन आप अपने सर्च विंडो पे जाओगे तो यहाँ पे एनाकोंडा प्रॉम्प्ट मिलेगा आपको। एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये मेरा पाथ है जहाँ मेरा एनाकोंडा इंस्टॉल्ड है। अब मैं यहाँ से कोई एनवायरनमेंट क्रिएट करना है तो मैं नया एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकती हूँ लाइक कोंडा क्रिएट and then the environment name.
Okay, create and then environment name. Just a second, wait guys, I need to respond a minute. Kushbu is asking a question. Is Conda and Anaconda same? Basically, Conda to install any software inside the Anaconda, ये command है Conda. जब हम कुछ भी इंस्टॉल करते हैं Conda के अंदर, तो Anaconda के अंदर, तो आप Conda फिर आगे लिख के हम इंस्टॉल करते हैं. सिंपल आपको लाइब्रेरीज कुछ इंस्टॉल करनी है तो आप पिप इंस्टॉल लाइब्रेरी नेम देते हो. जैसे आपको पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं. अभी आप लोग जिनको ये चीज़ें नहीं पता, डोंट वरी. सिमिलरली हम ये सारी चीज़ें मैं आपको एक-एक चीज़ें समझ आ जाएंगी टाइम से. बेसिकली बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं पाइथन में. उनको कैसे इंस्टॉल करते हैं? हर लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए पिप स्पेस इंस्टॉल स्पेस लाइब्रेरी नेम. बट समटाइम्स क्या होता है, हमें कुछ कोंडा का पर्टिकुलर पैकेज लेकर आना होता है. एनाकोंडा के अंदर ही है वो. तो आपको जैसे एनाकोंडा में आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, तो फिर आपको क्या करना है, कोंडा क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट नेम, इस तरह से आपको लिखना होगा. ओके. Daniel, you can try Jupyter Lab. I never tried it. Daniel is asking, ma'am, can we use Jupyter Lab for this? You can try it. It is an editor. I don't know more about it. You can give it a try if you want. And Daniel, you are from which college? ओके. सो कॉन्डा क्रिएट, जब हम एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिखा दूंगी, या हम थोड़ा आगे करेंगे. मैं जस्ट आपको ऐसे बता रही हूँ. अब आप जो भी कमांड, आपको कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है, आप इधर से आराम से कर सकते हैं. एनाकोंडा प्रॉम्प्ट बेसिकली जैसे आपका CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसी तरह से एनाकोंडा के लिए है. आपको कोई भी पैकेज इंस्टॉल करना है तो आप कोंडा एनाकोंडा प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और वहां जाके कर लेंगे. ये इजी होता है. जुपिटर में जाके आप करोगे वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है. ओके. सो दिस इज द रिक्वायरमेंट फॉर आवर ट्रेनिंग. आप सबको ये काम पूरा करना है. Okay, he is from university, some university in Lucknow. Okay, okay, Daniel. Jahangir Institute of Technology, Barbanki, affiliated to Abdul Kalam Technical University. Okay. So guys, आप लोग इंस्टॉलेशन आपकी क्लियर है? आप कर लोगे इस चीज को, जिनके नहीं इंस्टॉल्ड है? कैन यू सेंड मी क्विक कंफर्मेशन? क्लास को बोरिंग मत बनाओ. जिन्होंने नहीं किया है प्लीज आप लोग यस नो कुछ भेजो, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोग कर पाएंगे. और आपको लगता है कि मैम हम कर लेंगे, या आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हो.
ओके ओके, आई गॉट लॉट्स ऑफ कंफर्मेशन, थैंक यू सो मच। अब हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे, अब मैं आपको पाइथन में कुछ बेसिक चीज़ें समझाऊंगी। क्या पाइथन होता है, कैसे पाइथन यूज होता है, कैसे उसमें कोड लिखना स्टार्ट करते हैं। ओके, सो सिंपली जब आपका जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाता है, उसके बाद ऐसा आपके विंडो खुलेगा। यहाँ पे फाइल्स हैं, ये सारी फाइल्स हैं। यहाँ फोल्डर्स भी आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक आपको कोई नया फोल्डर बनाना है तो आप नया फोल्डर बना सकते हो। लाइक न्यू, आप टेक्स्ट फाइल बनाना चाहते हो, फोल्डर बनाना चाहते हो, टर्मिनल बनाना चाहते हो, आप जैसा भी आप यहाँ क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे जैसे मेरे डाउनलोड्स और बाकी फोल्डर्स पे आते हैं, मुझे जिस लोकेशन पे फाइल सेव करनी है मैं वहाँ क्लिक करके, जैसे डेस्कटॉप पे करनी है तो डेस्कटॉप पे क्लिक करके वहाँ पे नई फाइल को ओपन करके काम कर सकती हूँ। ओके, सिंपली यहाँ पे मुझे क्या करना है, लाइक मुझे एक न्यू पाइथन फाइल ओपन करनी है, पाइथन 3। ओके, मैंने एक पाइथन 3, ये न्यू फाइल ओपन हो गई है मेरी। आप लोग भी यहाँ, आपके यहाँ पाइथन 3 लिखा आ रहा होगा। मेरा थोड़ा एनाकोंडा ओल्ड वर्जन है। सो वहाँ से आपको न्यू फाइल लेनी है, ठीक है। अब इसका भी मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। यहाँ पे एक टैब होता है रनिंग। रनिंग में क्या होता है, जो जो फाइल आपके अभी रन कर रही हैं वो दिखेंगे आपको। आप उस पर्टिकुलर फाइल को बंद करना चाहते हैं, आप शट डाउन से बंद कर सकते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारा जुपिटर हैंग कर जाता है तो हम लोग आके सारी फाइल्स को शट डाउन कर देते हैं। क्लस्टर अभी कुछ नहीं है हमारे पास, तो सिंपली हमारा काम है फाइल्स का, ठीक है। अब मैंने एक एम्प्टी फाइल ओपन करी है। ये जो नाम है वो बाय डिफॉल्ट लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पे चेंज करना चाहती हूँ तो मैं चेंज कर सकती हूँ। लाइक मैं क्लास 1 नाम दे दिया मैंने, डीप लर्निंग क्लास 1। अब ये फाइल जो मेरी सेव होगी क्लास 1 डीप लर्निंग डॉट IPYNB फाइल से सेव हो जाएगी। इसको आप यहाँ पे चेक कर सकते हो सी यूजर्स में जाके। आप अपने नेम पे जाएंगे, ये क्लास 1 DL आपको मिल रही है। ओके, सो सिंपली कई बार ऐसे होता है हमें यहाँ से फाइल उठानी होती है, हम सीधा उठा लेते हैं। आपको किसी ने कोई IPNY फाइल भेजी है, उसको आप कैसे, आप इस फाइल को, मैं जो भी कोड लिखूंगी, लाइक मैं एक सिंपल सा कोड लिख रही हूँ, प्रिंट हेलो। ओके, यहाँ पे मैंने हेलो लिखा और मैं जितने भी कोड लिखना चाहती हूँ मैं डायरेक्टली यहाँ पे कोड लिख सकती हूँ। ओके, नाउ आई जस्ट वांट टू डाउनलोड दिस फाइल। यू कैन डाउनलोड इट, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। डाउनलोड एज PY IPYNB, है ना। सो बेसिकली हमको यही चाहिए होता है जनरली, PY और IPNY। लाइक मैंने IPYNB डाउनलोड कर ली। IPYNB क्या होती है, आई पाइथन नोटबुक, ये केवल जुपिटर नोटबुक में ही चलेंगी ये फाइलें। ओके, सो आप इस फाइल को डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद मान लो आपको कोई फाइल मैंने प्रोवाइड करी है जो IPYNB है। अब आपको ओपन करके देखना है कि उसके अंदर क्या है, तो आप यहाँ पे अपलोड में जाएंगे, उस फाइल को अपलोड कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ लिस्ट में दिख जाएगी और उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की फाइल खुल जाएगी। आर यू गेटिंग? सो बेसिकली आपको किसी ने IPNY फाइल दी है या आपको कहीं से मिल गई है IPNY फाइल, तो आप उसको कैसे यूज करें, आप यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटफॉर्म विच वी विल बी गोइंग टू यूज ड्यूरिंग दिस कोर्स। मनीषा इज आस्किंग मैम प्लीज रिपीट। मनीषा, दिस इज जस्ट सिंपली लाइक आई जस्ट वांट टू, मेरे पास बहुत सारी फाइल्स हैं, मैं किसी भी फाइल को डाउनलोड करना चाहती हूँ। ये फाइल है, इसमें बहुत सारा कोड मैंने लिखा है, लाइक प्रिंट टेस्ट, एंड ये जो है इसको एक सेल बोलते हैं। ये पूरा जो ये 1 2 लिखा आ रहा है ना, इसमें मैं कितनी भी लाइन का कोड लिख सकती हूँ, लाइक A इज इक्वल टू 10, B इज इक्वल टू 20, है ना। कितने भी लाइन का कोड लिख सकती हूँ, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक बनते हैं। लाइक ये एक सेल है, ये अगला सेल है, ये अगला सेल है, इस तरह से मैं एक साथ काम करती जाती हूँ। अब मान लो मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं इस फाइल को डाउनलोड करना चाहती हूँ। I just want to go there and I have just downloaded this file. There is some error. Just this is why? Yeah.
यू कैन डाउनलोड दिस फाइल। ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी मेरे डेस्कटॉप पे। सेव इट। अब मैं सिंपली क्या करूँगी, आपके पास किसी की ये फाइल मिली है आपको IPNY, आप इस फाइल को सिंपल नोटपैड या किसी में खोलोगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। एक मैं नोटपैड प्लस प्लस में इसको ओपन कर रही हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आएगा ये क्या कोड है। ठीक है। अब इसको चलाने के लिए आपको जुपिटर नोटबुक चाहिए। जुपिटर नोटबुक में आप क्या करोगे, बेसिकली आप इस फाइल को अपलोड करोगे। लाइक होम पे यहाँ जाओगे, अपलोड बटन, एंड जो मेरी फाइल थी क्लास करके कुछ, ये इस फाइल को मैं अपलोड कर रही हूँ। यहाँ पे अपलोड का बटन आ गया। ये ऑलरेडी मेरी फाइल थी, ओवरराइट कर रही हूँ मैं इसको। ये फाइल हो गई। लास्ट मॉडिफाइड को मैं ऊपर कर रही हूँ। ओके, क्लास 1DL, मैं इस फाइल को क्लिक कर रही हूँ। ये फाइल ओपन हो गई है। ठीक है। एंड यहाँ से आपको दिख रहा है, आप देख पा रहे हो जो फाइल में कंटेंट था वो वापस आ गया आपके पास। गॉट इट मनीषा? ओके, सो इस तरह से आप लोग किसी की फाइल यूज कर सकते हो। ठीक है। ये चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएंगी, बट थोड़ा सा एक बार गाइडेंस मिल जाता है तो आप ज्यादा अच्छे से उसको कर पाएंगे। ओके, नाउ कम टू द पाइथन। मैं आपको बेसिक पाइथन की कुछ चीजें बता रही हूँ जो हमारे काम में आएंगी। सो गो टू गो एडू हब। सो बेसिकली आपको क्या करना है, एक है ना हमारा छोटा सा मॉड्यूल है जो हमने ओपन कर रखा है, कोई भी कर सकता है उसको। उसमें से कुछ चीजें मैं आपको अभी बता रही हूँ जो अपने भी काम किए हैं। बाकी हम उसमें से कुछ चीजें देखेंगे, कुछ हम एक्स्ट्रा चीजें भी करेंगे। लाइक आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ये आपको लिंक मैं दे दूंगी। ठीक है, आप खुद भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग में दूसरा वाला कोर्स है मशीन लर्निंग विद पाइथन, उसके कोर्स कंटेंट पे जाएंगे तो आपको ये इंडेक्स मिलेगी। ठीक है, और मैं जो भी लिंक्स आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, आप लोग इसको सेव कर लेना कहीं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ओपन करना, या फिर आप गो एडू पे जाके सर्च कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या कुछ टॉपिक्स की लिस्ट है, जिनमें से हम जो कुछ पाइथन के कुछ मशीन लर्निंग के टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज एक्चुअली पाइथन। गाइस, पाइथन इज बेसिकली ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड यू कैन से इट इज द easiest language on the earth. We can learn this language very easily and within the few days. ओके, सो आप लोग इसको बहुत ही जल्दी से लर्न कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा सिंटेक्स नहीं होते, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हैं। इसमें जैसे आपने सी तो सबने पढ़ी होती है फर्स्ट ईयर में, जैसे आपने सी पढ़ी है तो आपको ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हम इसके सिंटेक्स याद करेंगे। ठीक है, अभी मैं कुछ चीज़ें करके दिखाऊंगी। सो इट इज़ ए जनरल पर्पस डायनेमिक हाई लेवल एंड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ओके, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, बेसिकली जनरल पर्पज, ये तो आप सब समझ सकते हो। इंटरप्रेटेड मीन्स इसको आपको अलग से कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको इसके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं सीधा। जैसे आप लोगों को सी में कंपाइल करना पड़ता है फिर रन करना पड़ता है, यहाँ पे कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली रन कर सकते हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है टू डेवलप द एप्लीकेशंस। बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मींस जो ओप्स के कंसेप्ट हैं वो सारे ये फॉलो करती हैं। ओके, सो इट इज a जनरल पर्पज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। एंड हिस्ट्री आई डोंट थिंक सो ये मुझे पढ़नी चाहिए, ये तो आप पढ़ लोगे कि कौन से ईयर में कब डेवलप हुई। नाउ कम टू द कैरेक्टरिस्टिक्स, इट इज easy to learn, free and open source. Like easy to learn means there is no need to learn and more structure, more the keywords, आपको बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है। फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स आपको इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। उप्स कंसेप्ट मीन्स आई एम कमिंग टू उप्स कंसेप्ट मीन्स लाइक जो आपके उप्स के कंसेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस होता है, एब्स्ट्रैक्शन होता है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, वो उप्स के कंसेप्ट से फॉलो करते हैं। इसके अंदर क्लासेस भी होती हैं, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, इसके अंदर बाकी उप्स के कंसेप्ट हैं, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, वो सारी चीजें होती हैं। ओके, जस्ट ए सेकेंड।
ओके, सो दीज आर द फ्री एंड ओपन सोर्स मीन्स आपको जैसे कोई भी, जैसे आप लोग अगर मैटलैब से अवेयर हैं, मैटलैब एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको परचेज करना पड़ता है, .NET आपको परचेज करना पड़ता है, बट पाइथन के लिए आपको ऐसा कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। ये ओपन सोर्स है, फ्रीली आप इसके वेबसाइट पे जाएंगे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। पोर्टेबल मीन्स इट कैन रन इक्वली ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स, इन सभी प्लेटफॉर्म पे ये चलता है। Expressive language, it is easily readable and understandable language. Interpreted, I already told you, you do not need to compile it, you can directly run its programs. Extensible, it is a language, you can write some of your code in the Python in other language like C++, it makes Python more extendable to the other fields. आप basically other programming language में program लिख के भी इसके साथ compile मतलब run कर सकते हो। Integrated, it can be easily integrated and GUI, आप इसमें graphical user interface बना सकते हो, कई library होती हैं इसमें, ठीक है। Large standard library, this is the beauty of the Python, I can say Python have lots of libraries available inside it, and just because of that only लोग इसको सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि बहुत सारी लाइब्रेरीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं जिनको यूज करके जो हमारा बेसिक ऑपरेशंस है उन हर एक चीज के लिए हमें अलग से कोड लिखने की जरूरत नहीं है, हम कुछ इनबिल्ट चीजें यूज कर सकते हैं। ओके गाइस, सो हम लोग बहुत जो लाइब्रेरीज हम धीरे धीरे आप पढ़ोगे, कई सारी लाइब्रेरी हम लर्न करेंगे इस कोर्स में, ठीक है। एंड देन कम टू द एप्लीकेशंस, किस तरह की एप्लीकेशंस आप बना सकते हो। वेब एप्लीकेशन यानी कि आप वेबसाइट बना सकते हो, इसमें एक जैंगो फ्रेमवर्क होता है, जैंगो में वेबसाइट्स बनती हैं, आपका इंस्टाग्राम है वो इसका एक एग्जांपल है। मशीन लर्निंग जैसे कि जो हम अभी करेंगे, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग चीजें, वो हम इसमें कर सकते हैं। साइंटिफिक कंप्यूटेशन लाइक इसमें पांडास, स्काईपाई ऐसी लाइब्रेरीज होती हैं, उनको आप कर सकते हो। बिजनेस एप्लीकेशंस, ओपन ERP, मतलब कई सारी बिजनेस एप्लीकेशंस इसमें डेवलप्ड हैं। गेम्स बना सकते हैं हम। डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए बनी होती है, मतलब किसी नेटवर्किंग में नहीं है ना, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बना सकते हैं। पाइथन, दीज आर द बेसिक थिंग्स कि हम पाइथन को क्यों करते हैं और क्या पाइथन का यूज है, कहाँ कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे बाकी लैंग्वेज से। जैसे मैंने आपको दिखाया, निशांत इज आस्किंग ए क्वेश्चन, CNC प्रोग्रामिंग हो सकती है क्या इस पर? व्हाट डू यू मीन बाय CNC? जस्ट राइट द फुल फॉर्म। निशांत, just write the full form of CNC. What do you understand by CNC? क्या होता है बेसिकली CNC प्रोग्रामिंग? कैन यू एक्सप्लेन इट? Is he not writing? Okay, just write it. Next time. Okay, no issue. I'll answer it. Don't worry. Okay, I'll tell it. It is coming to our content. Don't worry. Okay, so first simple चीज कि हम लोग C में और Python में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। आपको एक प्रिंट करना हेलो वर्ड। सो आप C में हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करेंगे, आपको कम से कम 3-4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। इंक्लूड stdio.h, int man, मतलब मेन फंक्शन आपको लिखना पड़ेगा, फिर आप कुछ printf लिखेंगे। Similarly, in the Python, what we need to do, we need to just write the simple print, जो हमने यहाँ पे किया। जैसे आपको पाइथन में कुछ भी प्रिंट करना है, आपको कोई हेलो मेन फंक्शन नहीं बनाना, कुछ भी नहीं करना, आप डायरेक्टली प्रिंट फंक्शन के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों में लिख सकते हो, वो आपका प्रिंट हो जाएगा।
लाइक दोनों सेम है, मैं डबल कोट्स या सिंगल कोट्स दोनों में लिख सकती हूँ. ओके, जनरली हमारी प्रैक्टिस रहती है डबल कोट्स की. And then as you can see, more Python code is shorter than C. It's like the English syntax. It makes Python more easy to learn, right? बेसिकली पाइथन जो सबसे ज़्यादा आजकल यूज होती है डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए, एआई के लिए और वेब डेवलपमेंट के लिए, गेम्स बनाने के लिए, इन सब के लिए सबसे ज़्यादा होती है. ठीक है, बाकी इसमें अपन स्क्रिप्टिंग भी कर सकते हैं. सो नाउ कम टू द, अब हम कोड लिखना सीख रहे हैं. ठीक है, अब हम लोग जैसे कमेंट्स लिख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कैसे लिखूं, मैं वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करूं, यूजर इनपुट कैसे लूं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये चीजें मैं समझाती हूँ अभी आपको. सो बेसिकली मैंने सिंपल यहाँ पे लिखा, 2 प्रिंट लिखे मैंने सिंपली. अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे वेरिएबल्स डिक्लेयर करती हूँ, लाइक a इज इक्वल टू 10. अगर मैं C में लिखती या किसी और लैंग्वेज में लिखती तो मैं क्या करती, यहाँ पे int a इक्वल टू 10 समथिंग लाइक दिस मुझे लिखना पड़ता. बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू, सिंपली हम लोग वेरिएबल लेते हैं एंड उसमें कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं. हम लोग डेटा टाइप नहीं लिखते. ओके, नाउ जस्ट आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a. ओके, तो ये मुझे सिंपली a का आउटपुट दे देगा. सिंपल, आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें वैल्यू असाइन करी, आपने प्रिंट कर लिया. अब आपने इसको नहीं बताया ये इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है. अब लेकिन पाइथन ऑटोमेटिकली इसको असाइन कर देता है. बेसिकली पाइथन क्या करता है, जैसे ही आपने ये किया, पाइथन ऑटोमेटिकली इसको कैटेगराइज कर देगा, इधर इट इज ए इंटीजर और इट इज ए फ्लोट और स्ट्रिंग. अब आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, यू कैन जस्ट चेक प्रिंट टाइप ऑफ ए. ओके, सो प्रिंट टाइप ऑफ ए, हम ए का टाइप चेक कर रहे हैं. ए का टाइप क्या आया, इंटीजर. और आप लोगों ने देखा यहाँ पे एक लिखा आया क्लास. बेसिकली पाइथन में ईच एंड एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट्स. जैसे आपने ए इक्वल टू 10 किया तो ये एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर हुआ, उस ऑब्जेक्ट के अंदर 10 वैल्यू गई. ठीक है, और उसका एक डेटा टाइप डिक्लेयर हुआ कि ये किस तरह का है, ये इंटीजर टाइप का है. ओके, सो बेसिकली क्या देखा, ये क्लास है, इंटीजर टाइप की क्लास में बिलोंग करता है. ओके, सो इसी तरह से अगर मैंने किया C इज इक्वल टू go edu hub and I can check the type of C. This is the string. So it automatically classify according to the data कि आपने इंटीजर दिया है, कि आपने फ्लोट दिया है, या आपने स्ट्रिंग दिया है. ठीक है, एंड इफ आई वांट टू कमेंट सम लाइन, लाइक मुझे सी को कमेंट करना है, सो हाउ टू डू कमेंटिंग इन द पाइथन, जस्ट राइट द हैश. ओके, भूपेंद्र जोशी इज आस्किंग ए क्वेश्चन, मैम ओनली टाइप ए लिखने पर डायरेक्ट इंट देता है, नॉट राइटिंग क्लास. ओके, आप प्रिंट के अंदर नहीं दे रहे हैं आई थिंक, राइट. बेसिकली आई शो यू टाइप ए, दिस वन. या जब आप विदाउट प्रिंट देते हैं तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली जो वेरिएबल है उतना ही बताएगा. आप प्रिंट कर रहे हो तो वो कंप्लीट उसको कॉल करके दिखाएगा आपको. ओके, ये प्रिंट और विदाउट प्रिंट लिखने का ये डिफरेंस होता है. प्रिंट में वो पूरी डिटेल बताता है आपको, और यहाँ पे केवल इसने बताया इंटीजर है, और वहां ऊपर इसने बताया कि एक इंटीजर की क्लास है, इंटीजर क्लास से बिलोंग करता है. बेसिकली जो इंटीजर, फ्लोट, ये सब जो है वो क्लासेस हैं पाइथन में, और जो ए जो बना है वो एक ऑब्जेक्ट बना है. ओके भूपेंद्र, ऐसे ऐसे हम हैश से कमेंट करते हैं. आपको मल्टी लाइन कमेंट करना है तो ट्रिपल सिंगल कोट्स आपको लिखने हैं.
Okay, what can I write? Simply I can write the print test. Okay, अब देखो मैंने प्रिंट टेस्ट लिखा पर मैंने कमेंट के अंदर लिखा तो ये प्रिंट नहीं होगा। आपको मल्टीपल लाइंस को एक साथ कमेंट करना है तो ट्रिपल सिंगल कोट्स आप यूज कर सकते हैं। आपको एक लाइन को कमेंट करना है, आप हैश यूज कर सकते हैं। सिंपल मैंने अभी तक क्या बताया, वेरिएबल डिक्लेयर करना, प्रिंट करना और कमेंट करना इन द पाइथन। अभी ज्यादा कुछ भी नहीं बताया मैंने। नाउ अब मैं क्या देख रही हूँ कि यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। यूजर इनपुट, हाउ टू टेक यूजर इनपुट इन द पाइथन। यूजर इनपुट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एक इनपुट फंक्शन होता है यहाँ पे, a इज इक्वल टू इनपुट, सिंपल इनपुट फंक्शन। ठीक है, a इज इक्वल टू इनपुट। इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एक बॉक्स आ जाएगा, ये बोलेगा कुछ इनपुट दो, जैसे मैंने दे दिया 20। ओके, अब मुझे इस फंक्शन को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है। अब इसके नीचे मैं क्या देखूंगी, मैं चेक कर लेती हूँ टाइप ऑफ ए, str। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, मैम ने यहाँ प्रिंट नहीं लिखा फिर भी आउटपुट आ गया। बेसिकली ये जुपिटर में होता है कि आपको कोई एक वेरिएबल सीधा आउटपुट में देखना है तो उसको आप प्रिंट में नहीं डालें तो भी हो जाएगा। जैसे कि a इज इक्वल टू 10 लिखा मैंने, b इज इक्वल टू 20 लिखा, मुझे प्रिंट करना है, मैंने a भी लिख दिया, मैंने b भी लिख दिया, बट आउटपुट किसका आएगा, b का आएगा। लास्ट वेरिएबल जो मैंने प्रिंट में, लास्ट जो भी कुछ मैंने प्रिंट में नहीं लिखा है उसका आउटपुट भी आ जाता है। और एक से ज्यादा मैंने ऐसे लिख दिए तो बाकी का नहीं आएगा, केवल लास्ट का आएगा। अगर आपको दोनों का चाहिए तो ऊपर वाले को आप कम से कम प्रिंट में पास कराएंगे तो ऊपर वाले का प्रिंट से आ जाएगा और नीचे वाले का डायरेक्ट आ जाता है। इसीलिए जनरली हमें एक सीधा आउटपुट देखना होता है तो हम विदाउट प्रिंट करते हैं। ओके, क्योंकि आपको एक ही चीज का आउटपुट देखना है। ठीक है, ये बेसिक्स हैं पाइथन के, ये बीच बीच में आएंगे। ये आपको ऐसे लग रहा होगा मैम ये अननेसेसरी टाइम वेस्ट क्यों कर रही है, ये सब आपको जरूरत पड़ेगी। ये नहीं आएंगे तो आप पाइथन में कोड नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अब मैंने यहाँ यूजर इनपुट लेना बता रही थी मैं, यूजर इनपुट मैंने लिया। अब मैं चाहती हूँ, देखो यहाँ पे देखो एम्प्टी बॉक्स दिख रहा है, मुझे इसके पहले एक मैसेज शो कराना है। लाइक इस इनपुट फंक्शन के अंदर डबल कोट्स के अंदर आप कुछ लिख सकते हैं, एंटर ए नंबर। ओके, अब मैं इसको रन कराऊंगी। अब देखो एंटर ए नंबर लिखा आ रहा है, इससे पहले जो भी आपने डबल कोट्स में लिखा है वो मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। ओके, एंड देन यहाँ पे जैसे मैंने 34 डाल दिया। अब मैं टाइप ऑफ ए, सॉरी, अब मैं ए को प्रिंट करती हूँ, प्रिंट ए की वैल्यू प्रिंट करनी है एंड मैं ए का टाइप भी प्रिंट कर देती हूँ। ओके, ए का टाइप आप देख रहे हो स्ट्रिंग आ रहा है, बट मैंने तो एक नंबर दिया है 34, हाउ कैन इट पॉसिबल, और वैल्यू 34 आ रही है। बेसिकली ये क्या है, जो भी आप पाइथन में यूजर इनपुट देते हो बाय डिफॉल्ट यूजर इनपुट एज ए स्ट्रिंग लेता है पाइथन। ओके, सो आपने जो नंबर दिया हो, आपने जो फ्लोट दिया हो, वो उसको स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। उस केस के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसी चीजों के लिए हम लोग उसको पहले कन्वर्ट करेंगे। इधर हमको इंटीजर चाहिए या हमको फ्लोट चाहिए, क्या चाहिए। यस मोहित, मैम इनपुट इज str। यस, इनपुट को स्ट्रिंग एज ए स्ट्रिंग बोल रहा है ये। आपने चाहे कुछ भी वैल्यू दी हो उसको ये एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करेगा। ओके, str मीन्स स्ट्रिंग। अब बेसिकली मैंने तो स्ट्रिंग नहीं दी थी, मैंने नंबर दिया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, a इज इक्वल टू एक फंक्शन है इंट, इंट में से इंटीजर में कन्वर्ट करना तो इंट में से पास कराना पड़ेगा a को। और अब मैं ये चीज प्रिंट करूंगी टाइप ऑफ a, तो मेरा इंटीजर आ जाएगा। अब देखो str से इंटीजर हो गया, गॉट इट। तो मैंने क्या किया, इसको इंट फंक्शन में से पास करा दिया। अब इसी तरह से मैं क्या करती हूँ, दो नंबर इनपुट लेती हूँ यूजर से और उनका सम कराती हूँ।
C is equal to A plus B print C. ठीक है, 34 and 23. You can say this 34 प्लस कॉन्कैट कर दिया उसको, बिकॉज इसने क्या किया, दोनों को एज ए स्ट्रिंग इनपुट लिया। पहला स्ट्रिंग 34 है, दूसरा स्ट्रिंग 23 है, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्कैट मतलब एक के आगे एक लगा दिया, जोड़ दिया। सो कॉन्कैट करके मुझे आउटपुट दे दिया, बट मुझे क्या चाहिए था 34 प्लस 23। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों को इंटीजर बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे जब मैं इनपुट ले रही हूँ उससे जस्ट पहले मैं इंट फंक्शन पास करा सकती हूँ, या तो मैं यहाँ पे नीचे एक और लाइन लिख सकती हूँ, a इज इक्वल टू a इक्वल टू इंट ब्रैकेट a, और उसके बजाय मैं यहाँ पे डायरेक्टली इंट फंक्शन में से पूरे को पास करा दूं, मींस यूजर का इनपुट आएगा, इनपुट फिर इंट फंक्शन में से पास होएगा तो इंटीजर बन जाएगा। ओके अब आप लोग इसका आउटपुट देखेंगे, जैसे मैंने 34 23 दिया, 34 प्लस 23 ये सम हो गया। गॉट इट? कैसे हम पाइथन में इनपुट लेते हैं, और जो इनपुट लेते हैं बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग होता है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इधर आप फ्लोट में कर सकते हैं, इंट में कर सकते हैं, जैसा भी आपको चाहिए। भूपेंद्र शायद आपने ऊपर वाले कोड को रन नहीं किया होगा, अदरवाइज अगर आपने फ्लोट में से पास किया तो टाइप फ्लोट ही बताएगा। जस्ट चेक इट अगेन एंड इफ स्टिल इट इज शोइंग जस्ट टेल मी। You have done it? ओके मैं चेक कर लेती हूँ, डोंट वरी, ऐसा होना नहीं चाहिए। x is equal to float input okay, okay, it is giving the float. No, Daniel, it is not doing the implicit typecasting. We need to do that only. Okay, Bhupender, clear it? मैंने क्या किया, एक फ्लोट लिया, इनपुट मैंने 34 डाला, उसका टाइप चेक किया तो ये फ्लोट ही दिखा रहा है। मे बी आप एक बार दोबारा रन करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि फ्लोट को इंट दिखाएगा। ओके So guys, now you can take the user input, sum, print, all these things you can do, right? अब हम लोग इसके आगे आते हैं। अब हमें इस पे अलग अलग ऑपरेशंस करने हैं, ठीक है? अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, रुको मैं एक बार ऊपर से रीड करती हूँ, ये आपको समझ आ गया? इन अ पाइथन सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, ओके? एंड वेरिएबल, नाउ कम टू द वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? Variables are nothing but the reserved memory location to store the values. This means that we can create variable. You reserve some space in the memory. Basically, whenever you are creating a variable, you are reserving some space in the memory. Basically, it is creating a kind of object. Basically, it is creating an object, you can say. अब मैं इस कोड को ले रही हूँ, ठीक है? मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। Guys, you can tell me you are getting the things or you need to you want to change something. आप लोगों को
इस तरह से चीजें समझ आ रही हैं क्या? लाइक यहाँ पे मैंने क्या लिया, a इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू गो एड्यूहब, सिंपल। एक में इंटीजर लिया, एक में गो एड्यूहब लिया, स्ट्रिंग लिया, दोनों को प्रिंट कर दिया, आउटपुट आ गया। दो वेरिएबल एक साथ प्रिंट करने हैं आपको, a कॉमा b ऐसे लिख सकते हैं। इसके साथ कुछ स्ट्रिंग भी दिखाना है, जैसे कुछ लोगों को चाहिए होता है वैल्यू ऑफ a, डबल कोट्स बंद किए, कॉमा ऑफ a इज इक्वल टू दिस, एक स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिख दी, कॉमा, फिर कोई वेरिएबल जो आपको लिखना है, फिर आपको फिर से कोई स्ट्रिंग लिखनी है, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू डबल कोट्स कॉमा। अब आप इसको देखोगे, वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 10, वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू गो एड, गेटिंग? सो एक से ज्यादा वैल्यूज और स्ट्रिंग इंटीजर कैसे एक साथ प्रिंट करने, वो चीज यहाँ से देख सकते हो आप। ओके, assigning single value to multiple variables, x is equal to y is equal to z is equal to 50 means x में भी 50 जाएगा, y में भी 50 जाएगा, z में भी 50 जाएगा, तीनों को आप प्रिंट कर सकते हैं। एंड दूसरा मेथड क्या होता है, आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में वैल्यूज एक साथ देनी है, लाइक a कॉमा b कॉमा c इज इक्वल टू 1 कॉमा 2 कॉमा 3 मीन्स 1 जाएगा a में, 2 जाएगा b में, 3 जाएगा c में। गॉट इट? सो ये सिंपल हमने अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए, उनकी वैल्यूज प्रिंट करके देखी, यानी कि मल्टीपल वेरिएबल एक साथ दे दिए और मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल वेरिएबल्स में डाल दी, सिंगल वैल्यू मल्टीपल वेरिएबल्स में डाल दी। So basically variables are nothing but the reserved memory location to store values. This means that when you are creating a variable, you reserve some space in memory. Got it? Now come to the next part. कुछ रूल्स होते हैं कि आप वेरिएबल का नाम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो बाकी लैंग्वेज में होते हैं, एज इट इज होते हैं, ठीक है ना? यू कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। जनरली हम वेरिएबल्स का नाम अल्फाबेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कीवर्ड। कीवर्ड क्या होता है गाइस? कीवर्ड मीन्स सम रिजर्व्ड वर्ड्स जो हमारी लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं पहले से। जैसे किसी भी लैंग्वेज में, सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, सब में कुछ कीवर्ड्स पहले से डिफाइंड होते हैं। जैसे लूप लिखने के लिए फॉर होता है, इफ होता है, फाइनली होता है, एल्स होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, एंड होता है। ये सारे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग पहले से सिस्टम में डिफाइंड होता है, लैंग्वेज में डिफाइंड होता है। उनको हम किसी वेरिएबल का नाम नहीं बनाते, ये हमारी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है? अब हम आते हैं पाइथन ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे आपको कुछ चीजें करनी है, कुछ ऑपरेशंस करने हैं, तो आप कैसे यूज करेंगे? जैसे एक प्लस ऑपरेटर है, एक माइनस ऑपरेटर है, ठीक है, एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, एक डिवाइड करने के लिए ऑपरेटर है, एक रिमाइंडर निकालने के लिए ऑपरेटर है, एक पावर लगाने के लिए ऑपरेटर है। जैसे मैं ये सारे ले लूं एक बार, मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जस्ट सेकंड, अदरवाइज मैं लिख भी सकती हूँ, इजी है ये, कोई बड़ी चीज नहीं, बट थोड़ा सा मेरा टाइम सेव हो जाता है, ठीक है? मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 21 ली, बी की वैल्यू 10 ली, ठीक है? Okay, what we are doing here, we are taking two values, a is 21, b is equal to 10, c is equal to 0, c is equal to a plus b, print c is equal to a minus b, दोनों का सम किया हमने 31 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 11 आ गया, मल्टीप्लाई किया 210 आ गया। देन हमने क्या किया, डिवाइड किया, a डिवाइड बाई b, एंड एक हमने, एक सेकेंड गाइस, जस्ट ए सेकेंड,
ओके, सो एक डिवीजन का है, एक रिमाइंडर का है और एक पावर का है। देखो मैं आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। डिवाइड्स लेफ्ट हैंड ऑपरेंड विद द राइट हैंड ऑपरेटर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यूज क्या ली थी, 21 डिवाइड बाय 10, ठीक है। सो 2.1 आ जाएगा आपका। एंड रिमाइंडर में आपको रिमाइंडर बताएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ये तो आप जो बाकी लैंग्वेज में मैथमेटिक्स में करते हो वही चीजें हैं। यहाँ पे एक डिफरेंट क्या है, पावर। आपको किसी चीज की पावर लगानी है तो a टू पावर b मीन्स a की पावर लाइक a क्या है आपका 21 टू पावर 10 हो गया है। और शायद अच्छा यहाँ पे a भी चेंज कर दिया मैंने, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, सो 2 टू पावर 3 हो गया है। ओके, सो बेसिकली हमारे पास क्या है, हम ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं वो यूज कर रहे हैं। ओके, असाइनमेंट ऑपरेट, वो सारे ऑपरेटर्स आपने समझ लिए, कर लोगे, ये बेसिक चीजें हैं। फिर हम लोग जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं, a इक्वल टू 21 तो a में 21 वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। एक के साथ आप बहुत सारी, जैसे एक बता देती हूँ मैं इनमें से ना, ये आपको पता ही होंगे वैसे। c इज इक्वल टू प्लस इक्वल मीन्स c इक्वल टू c प्लस a, ठीक है। अब c की कुछ वैल्यू नहीं होगी इसलिए। फिर हमारे पास क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। Comparison operators, I got a question, just a second. No, it is an old question. Comparison operators, like ये सारे ऑपरेटर्स एक बार आप ट्राई कर लेना। आई थिंक ये सारी चीजें आप लोग रीड कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीजें नहीं है। गाइज एग्री विथ मी और मैं एक एक समझाऊं। ओके, प्रियंका is telling me yes ma'am, Mohit no ma'am, okay I'll explain it, don't worry। एक बार मैं समझा देती हूँ, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैं नेक्स्ट में बता ही दूंगी, डोंट वरी। चलो, लाइक ये तो मैंने बता दिया आपको। ओके, समझ आ गया, मोहित इज रिटन, समझ आ गया। ओके, नो मैम एक्सप्लेन मत करो। ओके ओके, ठीक है। ये सारे ऑपरेटर्स हैं, एक बार गाइस आप देख लेना। फिर भी किसी को लगता है तो आप मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो कि मैम ये वाला ऑपरेटर समझाओ, सो मैं समझा दूंगी। c प्लस इक्वल मीन्स c इज इक्वल टू, इसका मतलब ये होता है जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, हैश c इज इक्वल टू c प्लस a, ठीक है। प्लस इक्वल मीन्स c इज इक्वल टू c प्लस a। ओके भूपेंद्र, गॉट इट। अब मैं आपको एक नई चीज समझाने जा रही हूँ। बीच बीच में क्या इसमें कंडीशन और बहुत सारी चीजें आती हैं, तो ये कुछ ऑपरेटर आपको कंडीशन के बाद भी समझ आएंगे। सो मैं अभी आपको एक कंडीशन समझाती हूँ पाइथन में। लाइक कि पाइथन में सिंपल आपने यूजर इनपुट ले लिया, आपने प्रिंट कर ली चीजें, बट अब आपको लॉजिक लिखने हैं, इफ कंडीशन लिखनी है। इफ कंडीशन आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो पाइथन में इफ एल्स लिखना है आपको, ठीक है। इफ एल्स में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लिखते हैं इफ के अंदर। लाइक यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो नया कंसेप्ट आएगा यहाँ पे, इंडेंटेशन। ओके,
इंडेंटेशन मीन्स हमारे पाइथन में कहीं पे भी कर्ली ब्रेसेस नहीं होते। ओके आपके पास कर्ली ब्रेसेस नहीं है, इट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली कुछ चीजें अलग कर रहे हैं। अब क्या होता है, इफ या कोई लूप या फंक्शन आप कुछ ऐसी चीजें लिखते हो, तो आप इफ के अंदर कुछ लाइनें लिखना चाहते हो, एल्स के अंदर कुछ लाइनें लिखना चाहते हो, किसी भी बेसिक प्रोग्रामिंग में उसको सेपरेट आप कर्ली ब्रेसेस से करते थे, बट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस है नहीं। सो उसकी प्लेस पे यहाँ पे हमारे पास एक नई चीज है, इंडेंटेशन। इंडेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग एक कॉलन का मतलब किसी चीज के कंटिन्यूअस के लिए एक कॉलन यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताती हूँ, लाइक मैंने इफ लिखा, उसमें मेरे को कोई एक कंडीशन लिखनी है, ए ग्रेटर देन बी। अब जब मेरी ये कंडीशन खत्म हो जाती है, ए ग्रेटर देन बी, मतलब मैं इसमें इतनी बड़ी कंडीशन लिखना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक कॉलन लगाती हूँ। कॉलन मीन्स मेरी इफ के अंदर की कंडीशन खत्म हो गई है, अब मुझे इसके नीचे कुछ लिखना है। फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एंटर प्रेस करती हूँ और कुछ स्टेटमेंट लिखती हूँ इसके अंदर, प्रिंट हेलो, ओके, प्रिंट हाय, प्रिंट ए। ठीक है, अब मेरे को जब इस इफ से बाहर आना है, देखो मेरा कर्सर एक ही लेवल पे आ रहा है हर बार। ये जुपिटर नोटबुक है जो ऑटोमेटिकली इंडेंटेशन दे रहा है आपको। ज्यादातर एडिटर अपने आप दे देते हैं आपको, बट आपको पहले कंसेप्ट समझ आना चाहिए। कई बार कहीं पे कुछ आपसे गलती हो जाती है, कुछ डिलीट हो जाता है, आपको समझ नहीं आता इंडेंटेशन एरर क्या है। सो बेसिकली आपने एक कंडीशन लिखी, कॉलन लिखा, उसके बाद उसके अंदर कोड लिखना चालू किया। ये सारा कोड एक इक्वल लेवल पे, या तो आप यहाँ पे स्पेस होते हैं इससे पहले, या यहाँ पे टैब होती है। सो जो भी अगर स्पेस होता है या टैब होता है वो इक्वल होता है। अगर पहले टैब दिया तो फिर भी सब में टैब देना। जितने स्टेटमेंट आपको इफ के अंदर लिखने हैं, ये सारे स्टेटमेंट एक इक्वल लेवल पे होंगे। जैसे ही आप इफ से बाहर निकलना चाहते हैं, आप बैक स्पेस दबाएंगे और इसके बाहर जाके लिखेंगे। आउटसाइड ऑफ इफ। अब क्या होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, लाइक a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, मैं इसको रन करती हूँ। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 5, सिंपली मेरा a b से बड़ा है, तो इफ यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं होती, सीधा हम लिखते हैं, कोई भी कंडीशन होती है तो इफ 10 ग्रेटर देन 5, 10 5 से बड़ा है, करेक्ट। सो कॉलन इसके अंदर चला जाएगा कर्सर, इसके अंदर जाके इसके अंदर जितने स्टेटमेंट थे वो सारे इसने एग्जीक्यूट कर दिए। ये कंप्लीट हो गया तो हम इफ से बाहर आ गए, जो भी आउटसाइड ऑफ इफ था वो प्रिंट हो गया। अब जितने भी स्टेटमेंट इफ से बाहर लिखोगे आप, वो सारे इसी लेवल पे बाहर की साइड होंगे। अब सपोज मैं क्या करती, यहाँ पे 50 कर देती हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, a ग्रेटर देन b, इट इज नॉट ट्रू। सो मेरा a b से बड़ा नहीं है, इसके अंदर नहीं जाएगा कर्सर। और हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट आउटसाइड ऑफ, सीधा कर्सर बाहर आ जाएगा, जो भी बाहर कुछ कोड लिखा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये जो चीज थी, जो ए के अंदर के कोड को सेपरेट करना था, इस चीज को हम बोलते हैं इंडेंटेशन। लाइक अब मैं एक एल्स कंडीशन भी लिख देती हूँ, एल्स में कभी कंडीशन नहीं लिखते, और यहाँ पे इफ एल्स लूप जो भी लिखते हैं वो खत्म करने का मतलब होता है कॉलन लगाना। आपने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, दो डॉट जो दिख रहे हैं ना आपको, इसको कॉलन बोलते हैं। एंटर, एल्स के अंदर कुछ लिखना है, प्रिंट b इज ग्रेटर, कुछ भी लिख सकते हो। और एक और स्टेटमेंट लिखना चाहती हूँ मैं, प्रिंट वैल्यू ऑफ b। ओके, सिंपली इफ कंडीशन मेरी ट्रू नहीं हुई, ठीक है, सो एल्स में चला गया। ये एल्स में इसने क्या लिखा, b इज ग्रेटर, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दिया। वैल्यू ऑफ b की जो वैल्यू थी वो प्रिंट कर दी 50, एंड फिर इससे बाहर आ गया। बाहर आके जो भी आपने स्टेटमेंट्स कंटिन्यूअस में लिखे हैं वो सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। सिंपल ये इफ एल्स कंडीशन है।
गॉट इट गाइस, जस्ट सेंड मी ए क्विक कंफर्मेशन। बहुत देर से आपसे कोई आउटपुट नहीं आया, मुझे कुछ मिला नहीं है। Okay guys, I got your response. And one more thing I just want to discuss with you guys, like there are the requests from 2 3 guys and they want a little bit shifting of the time because it is the month of the Ramjan. So they just want to like shift the class like 1 hour before, or right. So we are planning, if you don't have any issue, then we can shift for like 1 hour prior to this, like from 5:30. In place of 5:30, we can start from the 4:30. Yes. Just give me a confirmation. किसी को प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। अदरवाइज आई अज्यूम कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भूपेंद्र इज राइटिंग, मैम दोपहर में 1 बजे कर लो। 1 बजे दोपहर में देखते हैं। अभी पहले इवनिंग का अगर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम 4:30 इसको शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इफ यू वांट अर्ली इन द मॉर्निंग देन हम अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं इसको, लाइक इन द मॉर्निंग इफ यू वांट फ्रॉम 7:30 to 8:30 9:30। सुबह मूड फ्रेश रहता है। जस्ट टेल मी। अर्ली मॉर्निंग नहीं, बिकॉज माई मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स उठते नहीं है सुबह, है ना। Okay, 4:30 is good. 4:30, I think everybody is agree, right? Can we do 4:30? किसी को इश्यू नहीं है? आई अज्यूम कि हम कल से 4:30 करेंगे। ओके, फिर हम देख लेंगे। अगर आप लोगों को 4:30 ठीक लग रहा है तो हम थोड़े दिन में देखते हैं मॉर्निंग फिर। ओके, अभी 4:30 आई थिंक ओके। ठीक है, मैं लॉक कर रही हूँ। कल से तुम्हारा 4:30 होएगा। हम चेंज कर देंगे वेबिनार का टाइम, ठीक है। ऑल आर हैप्पी? Okay guys, now I'm just I'm just going to the next topic. Okay, so this is the simple indentation we have done. Like हमने simple if else लिखा है। अभी हम if else में भी like multiple conditions आपको देनी है। like आप चेक करना चाहते हो a greater than b and a greater than c, तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे and के लिए आपको directly a and d लिख सकते हो आप, like a greater than c। so आप यहाँ पे एंड ऑपरेटर या और लिखना हो तो आप डायरेक्टली ओ आर लिख सकते हो। गॉट इट? गॉट इट? एक से ज्यादा कंडीशन एक ही इफ के अंदर आपको चेक करनी है तो आप एंड और यूज कर सकते हो। एंड मीन्स दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी इस इफ के अंदर जाएगा। और मीन्स
इधर ये वाली, इधर लेफ्ट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए या हमारी राइट साइड वाली कंडीशन ट्रू हो जाए। ओके हम आते हैं धीरे धीरे, जस्ट वेट निशांत, एक एक चीज मैं कर लेती हूँ पहले, आप सारी चीजें देखेंगे, प्रेसिडेंट सब कुछ। ओके आप एक बार ट्राई करना, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको एक बार थोड़ा सा ट्राई करना होता है निखिल। मैं एक बार बता रही हूँ, फिर भी जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिसमें आपको मल्टीपल पैटर्न, मल्टीपल चीजें करनी है, तो वहां मल्टीपल कंडीशन और प्रेसिडेंस अपन चेक कर सकते हैं। अभी सिंपल एग्जांपल में नहीं समझ आएगा। ओके अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये सिंपल इफ एल्स था। एक हमारे पास होता है इफ एल्स, ये तो हमारा एल्स हो गया। इसके अलावा आपके पास एल्स इफ भी होता है, एलिफ। यहाँ एल्स इफ की जगह हम लोग क्या करते हैं, एल्स इफ की जगह हम लोग एलिफ लिखते हैं। ओके तो in the place of else if, here what we have, elif, elif। else if क्यों होता है बेसिकली, लाइक else if में क्या होता है, देखो मैं आपको बताती हूँ। एक if लिखा, एक एलिफ लिखा, फिर एक और एलिफ लिखा, फिर एक else लिखा। इन सब का क्या मीनिंग है, पहले हम if के अंदर कोई कंडीशन होती है उसको चेक करते हैं। अगर वो if की कंडीशन ट्रू है तो हम इन तीनों को नीचे नहीं देखेंगे, ठीक है। अगर उस इफ के अंदर जो भी कंडीशन है, लाइक कंडीशन में लिख लेती हूँ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, मैं ऐसे लिख रही हूँ, उसके अंदर मैं कुछ भी नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी है तो हम नीचे कुछ भी चेक नहीं करेंगे, यानी कि इन तीनों के अंदर जो भी कोड लिखा हम नहीं देखेंगे। अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं है तो हम इसके जस्ट नीचे वाले एलिफ को चेक करेंगे। इस एलिफ के अंदर जो कंडीशन है, लाइक ए ग्रेटर देन सी, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या करूंगी, इसके नीचे जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर दूंगी और एलिफ और एल्स इन दोनों को चेक नहीं करूंगी। ये कंडीशन भी फॉल्स है, फर्स्ट दोनों कंडीशन फॉल्स है तो हम थर्ड एलिफ को चेक करेंगे, ठीक है। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हम एल्स में चले जाएंगे। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका। लाइक पाइथन कंडीशन इफ एल्स का जो यहाँ पे ट्यूटोरियल है, इसको आप लोग रीड कर सकते हो आफ्टर द क्लास, ठीक है। यहाँ पे इंडेंटेशन के बारे में एक्सप्लेन्ड है, डिसीजन मेकिंग क्या होता है ये एक्सप्लेन्ड है विद द डायग्राम, ये आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये मैं अभी एलिफ समझा रही हूँ आपको, ठीक है। सो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल इफ एल्स मैंने आपको समझा दिया है, एलिफ मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। ओके देखो, ऐसे आप किसी का कोड लेते हो, कॉपी करते हो, पेस्ट करते हो, उसमें एक एरर आ जाती है इंडेंटेशन। अब अगर आपको इंडेंटेशन पता ही नहीं तो आप कैसे कर सकते हो आगे। आई गोट अ क्वेश्चन, मैम लॉकडाउन एक्सटेंडेड इन इंडिया टिल 17th May। Oh really? I've not seen the news still. It's a confirm. Let me check. Just a second. दो हफ्ते और बड़ा लॉकडाउन। ओके ओके guys, we need to follow, we have to follow, right?
Okay, guys. So where we were actually, we need to check it. Basically, what is the problem of indentation? Okay, I just saw on the all of you a new channel. That is the simple. We can now confirm it is a lockdown. Okay, right. So here I got a problem of indentation. Simply what we need to do, we just need to check it out. Like we need to provide here indentation. आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं basically A is equal to this, B is equal to this. If A greater than this, हमने एक condition दी. If B greater than A, then it will execute this. Else if A equals to B, then it will execute this. Otherwise, it will execute this. Okay. So now you should clear with the indentation. Okay. So here the value of A is equal to 12. Value of B is equal to 20. And now you can say B is greater than A. ओके सो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर बी ए से बड़ा होता तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाता. बी हमारा ए से बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है 20 है. सो बी इज ग्रेटर देन, इस कंडीशन में हम ट्रू हो गए. एलएफ और एल्स के अंदर हम नहीं गए. इन केस ए आपका बी के बराबर होता तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई एंड दिस कंडीशन शुड बी ट्रू और इसके अंदर जो है वो प्रिंट हो गया. अगर मेरा ए बड़ा भी नहीं है, ए बी के बराबर भी नहीं है, सॉरी बी बड़ा भी नहीं है, इन केस क्या है हमारा a is greater than b, that time what will execute, b is not greater than a. So this is the elif. How to write the elif? You got it? Now it is clear. So this is the elif. You can write the multiple elif. आपको मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी है तब हम एलिफ यूज करते हैं. वन मोर थिंग इन द कंडीशंस, like you need to check the nested if. Nested if means, guys, we are writing if inside the if. Okay, so you can see this code. Like I'm taking an input of from a user. I'm taking an input from user for the x. If x greater than 50, then I'll executing value is greater than 50. If x is greater than 100, then value is greater than 100, else value is less than 100. बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, दो कंडीशन चेक कर रहे हैं. फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, x हमारा 50 से बड़ा होना चाहिए. अगर आपने वैल्यू डाली है 55, सो ये क्या करेगा, ये कंडीशन ट्रू हो गई. x ग्रेटर देन 100 है क्या, नहीं. इफ के अंदर एक और कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, x ग्रेटर देन 100, नो. सो ये क्या करेगा, एल्स को एग्जीक्यूट कर देगा, वैल्यू इज लेस देन 100. हम दो कंस्ट्रेंट एक साथ चेक कर रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 50 और x इज लेस देन 100. ओके, सो बेसिकली एक इफ के अंदर, अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे इस इफ के अंदर कॉलन है. अब ये सारे स्टेटमेंट है वो सारे इफ के अंदर है, फिर ये एल्स है. अब इफ के अंदर हमने फिर से एक इफ लिखा, यानी इस इफ को हमें पहले वाले इफ से सेपरेट करना है, कॉलन फिर से इंडेंटेशन, तो ये थोड़ा आगे आके स्टार्ट हुआ. एल्स कॉलन ये थोड़ा आगे जाके स्टार्ट हुआ. ओके, now I think you got it there, how to make the decision making in the Python. अब आप लोग प्रोग्राम करेंगे, बेसिक मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर आप फाइंड आउट कर सकते हैं. चेक इफ ए गिवन नंबर इज इवन और ऑड. सिंपल 2-3 चीजें आप चेक कर सकते हैं अभी. ओके, सो नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेक इज लूप्स. बिकॉज जब आप लूप और कंडीशन दोनों रीड कर लेते हैं, उसके बाद आप बहुत सारे क्वेश्चन करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं. And if you have any question till now, you can ask me. Bhupendra is asking a question. Ma'am, a question, if I want to print only the greater than 100, not statement of greater than 50. When number is greater than 100, then I'm not getting a question. It is so much confusion. इसमें वो greater than 50 नहीं आना चाहिए.
आप एक यूजर इनपुट ले रहे हैं एंड यू जस्ट वांट ओनली द ग्रेटर देन 100, आपको 100 से अबव है तो आपको प्रिंट करके दिखाना है, राइट? एंड नंबर इज ग्रेटर देन 100, इसमें वो ग्रेटर देन 50 नहीं आना चाहिए। ऑब्वियसली ग्रेटर देन 100 है तो वो ग्रेटर देन 50 तो होगा ना। भूपेंद्र, आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। आपको सिंपल कंडीशन चेक करनी है, आप लिख सकते हो इफ x ग्रेटर देन 100, सो वो सिंपली आपको आउटपुट चेक कर देगा, एल्स लेस देन 100 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, फर्स्ट प्रिंट हम हटा देंगे मोहित, रिटर्न इज। We can put the greater than 50 in indented else. Yes. Simply, Bhupender, we can write the simple like if greater than, as per my understanding of your question is, you just want to print the number that is the greater than 100. And Mohit is written something. Just I'm coming to this. Wait a second, Mohit. Print this, else not. और जैसे भी आपकी कंडीशन आप यूज कर सकते हो, ओके? And Manisha is asking a question. In the last question, you explained how to elif keyword. मनीषा, एक्चुअली एलिफ कीवर्ड क्या होता है, आपको एक से ज्यादा कंडीशन ट्रू कर चेक करनी हो। लाइक मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये तो नेस्टेड इफ है, ये लाइक मुझे एक से ज्यादा कंडीशन चेक करनी है। पहले मैं क्या चेक कर रही थी, ए बी ग्रेटर देन ए है या बी लेस देन ए है, सो मैं सिंपल इफ एल्स चेक कर रही हूँ। बट मुझे एक और कंडीशन चेक करनी है कि अगर बी ग्रेटर देन ए है तब तो ये चीज होनी चाहिए, बी इक्वल इक्वल्स टू ए है तो ये होना चाहिए, और अदर केसेस में मेरा जो एल्स में लिखा है वो प्रिंट होना चाहिए। तो एलिफ हम जब लिखते हैं जब हमें मल्टीपल कंडीशंस चेक करनी, यानी कि हमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट लगाने हैं, हमें ये चेक करना है कि एक चीज ये चेक करनी है कि ये कंडीशन हो तो आउटपुट ये आना चाहिए, दूसरी कंडीशन हो तो आउटपुट ये आना चाहिए, अदरवाइज आउटपुट ये आना चाहिए। Got it? Manisha and Bhupender? Yes, Mohit, we can do if and if do statement, but यहाँ पे जनरली हम if do लिखने की हमें जरूरत नहीं होती, सिंपल हम if elif और else से हमारा काम हो जाता है। You can use if you want. I never tried it if do. Simply I can write the if and elif or else. Okay, Mohit? We'll take it. So this is the simple syntax of simple if else. I'm starting from very basic. उसके बाद
नो मैम, 2 बार इफ यूज कर सकता है। हाँ, 2 बार इफ यूज। ओके, यू आर गिविंग द आंसर ऑफ फॉर ओके डू स्टेटमेंट। मोहित इज गिविंग द आंसर फॉर आई थिंक भूपेंद्र's क्वेश्चन कि 2 बार इफ यूज कर सकता है। वो नेस्टेड इफ मैंने दिखाया था वैसे उसको, कि अगर आपको 2 चीजें चेक करनी है, ग्रेटर देन 50 और फिर ग्रेटर देन 100, आपको चेक करना है, नेस्टेड इफ यूज कर सकते हो आप, राइट। आई थॉट आप कोई नया सिंटेक्स बता रहे हैं, इफ डू, सो आई टोल्ड यू आई नेवर यूज इफ डू स्टेटमेंट। ओके भूपेंद्र, वेयर आर यू? आप कुछ भी नहीं लिख रहे हैं आई थिंक। Are you getting the things or we need to clear it? But write a small program. Bhupendra, am I audible to you? Okay, okay, okay. Okay guys, so हम लोग अभी बेसिकली हमने क्या किया है, हमने कंडीशंस समझ लिया, इफ एल्स हम कैसे लिखते हैं, और हमने सिंपल पाइथन के बेसिक्स समझे अभी। ठीक है, आप सब लोगों को ये जाके ये सारी जो चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ये सब प्रैक्टिस करना है। ओके अब मैं थर्ड टॉपिक पे आती हूँ। 3 टॉपिक हमें आज कवर करने हैं। लूप्स, ठीक है। हाउ टू राइट द लूप्स इन द पाइथन। बेसिकली हम लोग अभी लर्न करेंगे लूप कैसे लिखते हैं पाइथन में। मैं एक सिंपल लूप आपको लिखना सिखाती हूँ, फॉर लूप। बेसिकली लूप्स क्या होते हैं आप सबको पता होना चाहिए। लूप में हमें एक पर्टिकुलर कोड को लाइक 3 बार चलाना है, 4 बार चलाना है, जितने टाइम आपको रिपीट करना है एक पर्टिकुलर कोड को, आप वो लूप में लिखते हैं, राइट। Daniel, I'll try to complete it in the 3-4 classes. Daniel is asking how many days it will take the module 0. Within the 3-4 classes, I'm trying to do this module 0. And basically, till the functions, it is the important. For the machine learning, this is very important till the functions. हमें functions तक का आना चाहिए. So इसमें मैं जो 2 classes आपको दूंगी, वो थोड़ा time taking है. उसके बाद हम थोड़ा चीजें समझने लग जाएंगे, थोड़ा स्पीडी हो जाएगा। Yeah, I can understand this is repetitive for you. You have attended some classes of me previously. But there are lots of students are new, so I need to repeat the things also. Okay. So guys, are you getting now? I'll tell you about the loop. Basically हमें loop लिखना है। loop कैसे लिखते हैं हम? Or I can remove it. Okay. So basically what is the loop? सबसे पहले अलग अलग टाइप के लूप्स होते हैं। हम लोग एक फोर लूप लिखना सीख रहे हैं पाइथन में। फोर लूप कैसे लिखते हैं? सो फॉर द फोर लूप यहाँ पे एक सिंटेक्स होता है आपके पास। फोर लूप के लिए 4 कीवर्ड होता है आपके पास, 4 कीवर्ड, एंड देन आपको एक वेरिएबल लिखना है और इन कीवर्ड इसमें प्रीडिफाइंड है। फिर आपको वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलाना है, ठीक है। जैसे एक फंक्शन होता है यहाँ पे रेंज। मैं आपको पहले रेंज फंक्शन समझा रही हूँ। रेंज, ओके। बेसिकली रेंज फंक्शन क्या है? In the range function, we need to write some parameters. Like we can write maximum 3 parameters in the range function, or we can give either 1, 2 or 3. Any कि आपको एक पैरामीटर भी दे सकते हैं आप, 2 भी दे सकते हैं आप, और 3 पैरामीटर्स भी दे सकते हैं। ओके, सो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक पैरामीटर दे रहे हैं, लाइक रेंज 5। रेंज 5 का मतलब क्या होता है?
यहाँ पे फोर लूप के किसी भी लूप के अंदर आपको तीन चीजें चाहिए, एक इनिशियलाइजेशन चाहिए, एक इंक्रीमेंट, एक कंडीशन चाहिए होती है आपको लूप में, और एक आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट चाहिए होता है। ओके, सो आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं और इस लूप में ये सीक्वेंशियली तीन चीजें होती हैं बेसिक। अगर आप तीन पैरामीटर देते हो तो ये पहला पैरामीटर इनिशियलाइजेशन को इंडिकेट करता है, दूसरा कंडीशन को इंडिकेट करता है एंड तीसरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को इंडिकेट करता है। बेसिकली अगर मैंने सपोज एक ही पैरामीटर दिया रेंज 5, इट मीन्स इनिशियलाइजेशन ये बाय मतलब इट मीन्स दिस इज द मिडल पैरामीटर, ये कंडीशन पैरामीटर है। मीन्स मेरा इनिशियलाइजेशन कहाँ से होगा, डिफॉल्ट इनिशियलाइजेशन मेरा 0 से होगा एंड कंडीशन मेरी क्या हो रही है, यानी कि मेरा लूप कहाँ तक चलेगा, 5 तक, और डिफॉल्ट मेरा इंक्रीमेंट होगा और इंक्रीमेंट कितने का होगा, बाय 1। Means if I am giving a parameter 5, it means my loop will run 5 times. It will start from 0, 0 to 4, 0, 1, 2, 3, 4. Right? 0, 1, 2, 3, 4. 5 times my loop will run. Similarly, अगर मैं क्या करती हूँ, दो पैरामीटर इसमें पास कराती हूँ, okay? Like 1, 5. It means my starting is, जो मेरा स्टार्ट पैरामीटर है वो है 1, मेरा लूप स्टार्ट होगा 1 से, कंडीशन है 5 और इंक्रीमेंट बाय डिफॉल्ट 1 है। इट मींस मेरा लूप कहाँ से चलेगा, 1 से लेके 4 तक। जो मेरी लास्ट कंडीशन होती है वो इंक्लूसिव नहीं होती, मींस उसके एक कम तक लूप चलता है। यू आर गेटिंग? Basically we have a function called range that is the new for you guys, and in the range we can pass 3 parameters. When we are passing one parameter, it means this is the condition, default start point is 0 and condition will go till the 5 and by default increment by 1. Okay, and similarly अगर मैं 3 पैरामीटर देती हूँ like 1, 5, 1, 5, 2, सो मेरा इनिशियलाइजेशन क्या है, 1, ओके, मेरी कंडीशन क्या है 5 एंड मेरा इंक्रीमेंट क्या है 2। मींस ये मेरा लूप जो चलेगा वो 1 से स्टार्ट होएगा, लाइक 0 नहीं होगा यहाँ पे, 1 से स्टार्ट होगा और दो का इंक्रीमेंट, लाइक 1 के बाद 2 नहीं होगा, सीधा 3 होगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 होना चाहिए, बट 5 से छोटा नहीं है, इसलिए ये दो ही बार लूप चलेगा, 1 और 3। आर यू गेटिंग गाइस? रेंज फंक्शन में 3 पैरामीटर कैसे वर्क करते हैं। अब अगर मुझे इंक्रीमेंट की जगह डिक्रीमेंट कराना है तो मैं रेंज फंक्शन में वैल्यूज क्या दूंगी, स्टार्टिंग आपको किसी मैक्स वैल्यू से करनी है, यानी कि आपको बड़ी वैल्यू से स्टार्ट करना है। इनिशियलाइजेशन आप 5 से कर रहे हैं, आपकी लिमिट कहाँ तक जा रही है, सपोज 1 तक जा रही है, और डिक्रीमेंट आप करेंगे तो -1 लिख रहे हैं। इट मीन्स माई लूप स्टार्ट्स फ्रॉम 5, ओके, and condition will be till the 1 and the decrement of -1। तो कैसे चलेगा ये लूप, पहले आएगा 5, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर 2। ओके, ये बेसिकली कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जुपिटर में शॉर्टकट होता है रन करने के लिए, शिफ्ट एंटर आप प्रेस कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक लूप लिखती हूँ 4i, एक वेरिएबल है जो मैंने सिंटेक्स में बताया, 4 वेरिएबल, फिर एक कीवर्ड होता है इन, यहाँ पे देख लो कीवर्ड्स का कलर चेंज हो रहा है। ओके, 4i in and then हम रेंज फंक्शन लेते हैं, range 5। okay, now what I am going to print, I'm just going to print I। okay, you are getting things। अब मैं क्या करूंगी, इसी लूप को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। मैंने एक ही मतलब 5 दिया, इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू इनिशियलाइज कहाँ से होगी, 0 से होगी,
i की वैल्यू पहले 0 है, एक से इंक्रीमेंट होगा, 1 2 3 4 तक जाएगा। अगर मैं इसको 1,5 कर देती हूँ तो क्या होगा, 1 2 3 4, ठीक है। और मैं इसको इंक्रीमेंट 2 का कर देती हूँ तो क्या होगा, 1,1 और 3। देखो लूप में भी वही चीज है, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस नहीं है, इंडेंटेशन है, कॉलन लिखा, लूप की चीजें कंप्लीट होने के बाद उसके बाद इंडेंटेशन से कोड आ गया। ओके, एंड सिमिलरली अगर मुझे नेगेटिव लूप चलाना है तो मैं क्या करूंगी, रिवर्स कंडीशन कर दूंगी, लाइक आई विल स्टार्ट फ्रॉम 5, आई विल गो टिल द 1 एंड देन द 1 -1. So print is this. Yes, Daniel, by default, I got a question from Daniel. He's written, ma'am, you have not given new line /n, but it is printing in the new line. Why? Because Python's print function by default provides output in a new line. If you want in a same line, then you need to write here. क्या लिखना होता है, किसी को पता है? Can you guys give me answer? क्या लिखूं मैं अगर मुझे सेम लाइन में आउटपुट चाहिए तो? एंड फिर सिंपली एंड लिख दिया मैंने, एरर आ गई। ओके, आई गॉट आउटपुट आंसर, एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स। ओके, सो एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स मीन्स ये मेरे को सेम लाइन में आउटपुट देगा। Okay, some guys are already know little bit about the Python. Okay, that is good for you. And those do not know anything, don't worry, you will learn each and everything from the fresh. क्या होता है, बेटर होता है कि आपने अगर कुछ नहीं सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, उससे बेटर है आपने कुछ नहीं सीखा। Because you are at 0, you will get everything from the fresh. And जिनको थोड़ा आता है उनके लिए अच्छा है, बट ऐसा नहीं है कि जिनको नहीं आता वो लर्न नहीं कर सकते, you can learn very well. Some people are from electronics or electrical background also, so don't worry, you can learn easily. Python is very easy language and it is also interesting. Okay, Daniel is for good, don't worry. It's okay, it happens, it's our human nature, we forget the things. Okay, so this is the simple for loop. हम लोग for loop कैसे लिखते हैं? I think अब आप सबको loop लिखना आ गया, अब आप लोग बहुत सारी प्रैक्टिस इसमें कर सकते हैं। आप लोग ट्राई करना, मैं कुछ पैटर्न्स बता रही हूँ आपको, असाइनमेंट्स भी मिलेंगे। अभी मैंने while loop, क्या चीज रह गई है, एक मैं आपको असाइनमेंट 1 देती हूँ अभी, ठीक है। अब उसमें कुछ चीजें हैं जो आपको नहीं आएंगे अभी, थोड़ा बहुत जैसे कहीं कहीं लिस्ट की कुछ चीजें हैं तो उसको छोड़ देना, जो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। मैं आपको एक लिंक दे रही हूँ, यहाँ आप गो एड्यू हब पे आप साइट ओपन करो, गो एड्यू हब, ठीक है। गो एड्यू हब ओपन करके राइट साइड में सर्च बॉक्स है, यहाँ पे आप असाइनमेंट सर्च कर सकते हैं, असाइनमेंट 1। सॉरी, व्हाट हैपेंड, असाइनमेंट 1 नहीं है क्या? Assignment, simple assignment, you can search and you will find. Don't look at the answers, आपको खुद से solve करने सारे questions. I'm providing you link also. Okay, all of you guys please try to solve these questions. Basically क्या है ये questions, बहुत ही easy हैं, कुछ patterns आपको बनाने हैं, तो patterns में आपको same line new line का ध्यान रखना है। आंसर कैसे आ रहा है, आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, जस्ट ओके। पहले कमेंट्स दिख रहे हैं क्या? जस्ट अ सेकेंड, आई नीड टू चेक इट आउट। हीरा, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसके आंसर में जो चीज आ रही है ना, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 15,
15 क्वेश्चन है, आपको सिंपली ये 15 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आंसर्स आप अपनी नोटबुक फाइल बनाएंगे अभी, फिर मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। आज के लिए आप सिंपल एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, फिर मैं सबमिशन का प्लेटफॉर्म और वो सारी चीजें आपको बता दूंगी। मोहित इज राइटिंग मैम पैटर्न्स में दिक्कत आती है, आप एक बार ट्राई कीजिए, आप सिंपल पैटर्न्स ट्राई करना पहले, फिर भी दिक्कत आती है तो कल हम डिस्कस करेंगे। ओके ओके गाइस, किसी को कोई इश्यू या कोई क्वेश्चन या कुछ, इफ यू वांट सम डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग या जो भी आपको लगता है रिव्यू फॉर द टुडेज क्लास एंड दोज हु आर द न्यू फॉर द क्लास, गाइस प्लीज प्रोवाइड मी द फीडबैक। Or you are getting the things. Okay. And what about the remaining? Priyanka, are you getting the things? Sheena is written, ma'am, it was a good experience. Priyanka is also written, it was a good. And I'm checking the list, just wait. और कौन कौन लोग response नहीं दे रहे? Tanuja, are you getting? Nishant Bhatt. Nishant Bhatt and Nikhil Sharma. Manisha is written, Harshita is written, Nikhil. And what about the Nishant? Are you there, Nishant? Most of you written. I think one guy. Okay, you are getting the things. Basically, I'm just checking कि आप लोगों को समझ आ रहा है, आप नेक्स्ट क्लासेस में कंफर्टेबल रहेंगे, हम इसी वे में कंटिन्यू रखेंगे चीजें, ठीक है? So I got responses from most of you guys. Okay, so this is enough for today. Just practice over the assignment 1 and try to read all these three concepts I provided you. What is the basic Python, if else conditions and loops. This is very important for the your foundation. Like this, now we are creating the foundation for you guys. You just learn how to code in the Python. Okay, and one more thing, you can inform your friends if any if you like the class, you can tell your friends, they can also, if they want to join, they can also join from tomorrow onwards. Okay, जैसे आपके कुछ फ्रेंड्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कल से ज्वाइन कर सकते हैं, उनकी फर्स्ट क्लास अपन किसी और क्लास में मर्ज कर देंगे. Okay, okay guys, thank you so much. Okay, bye bye.